ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ AM 600 ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਦਾ ਨਵਜੋਤ ਢਿੱਲੋਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਛੇੜਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਦਿਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਂਸ ਡੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਡਾਂਸਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰੈਂਚ ਡਾਂਸਰ ਨੇ ਜੌਨ ਜਾਰਜਸ ਨੋਵੇਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਂਸ ਡੇ 'ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਂਸ ਡੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਡਾਂਸ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਾਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਡਾਂਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਂਸ ਉਹੀ ਹੈ, ਨਾਚ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਥਿਰਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਂਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਂਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗੜਾ ਸਿੱਖਣ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਭੰਗੜੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਂਸਿਸ ਨੇ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਡਾਂਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਂਸ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਂਸ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਰਚਨਾ ਸਿਨਹਾ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਡਾਂਸ ਟੀਚਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ DPS ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਫੋਰਮਿੰਗ ਆਰਟਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਸ ਸਿਖਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡਾਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਘੁੰਗਰੂ ਡਾਂਸ ਅਕੈਡਮੀ, ਇਸ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰਚਨਾ ਸਿਨਹਾ ਜੀ ਦਾ। ਅਰਚਨਾ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ। शुक्रिया, थैंक यू, सत श्री अकाल, नमस्ते कनाडा, नमस्ते भारत। अच्छा, तो सबसे पहले हम डांस की इम्पोर्टेंस है उससे ही शुरू करना चाहेंगे कि क्या महत्व है डांस का। आप डांस के साथ इतने सालों से जुड़ी हुई हैं, तो कुछ अगर इस चीज़ पे आप रोशनी डाल सके तो। देखिए, डांस जो है वो जब एक बच्चा जन्म लेता है तब से उसके अंदर में वो अंदरूनी वो इंस्टिंक्ट होता है। वो बच्चा जैसे ही आप म्यूज़िक चलाएंगे आप देखेंगे कि वो नन्हा सा बच्चा अपना हाथ पैर हिलाने लग जाता है और वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वो वैसे वैसे उसकी रिदम्स और बढ़ती जाती है। फिर वो मूवमेंट्स करना शुरू करता है, तो वो उन मूवमेंट्स को उस म्यूज़िक के थ्रू वो इंजॉय करने लगता है। उसको नहीं पता होता है वो एक्चुअली क्या कर रहा है, बट दैट्स अ डांस, दैट बिकॉज ही इज इंजॉइंग दैट म्यूज़िक। अपने बॉडी के अंदर में वो म्यूज़िक को इंजॉय करके अपने हाथ पैर को जो चला रहे वही एक डांस होता है। फिर जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं और हमें सोसाइटी, दुनिया, अपने कल्चर के बारे में पता चलता है, तब हम समझ पाते हैं कि अच्छा डांस ये होता है। तो हम उसको एक स्पेसिफिक रूप में देखने लग जाते हैं, एक हम उसको एक स्ट्रक्चर वे में देखने लग जाते हैं। पर डांस स्ट्रक्चर वे में तो होता है जब हम प्रोफेशनली उसको सीखते हैं किसी चीज़ को, चाहे वो कोई भी तरह का डांस हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो अगर सीखते नहीं है वो डांस नहीं कर पाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो भी डांस कर सकते हैं क्योंकि वो डांस तो इंजॉयमेंट है, आपकी अपनी अंदरूनी खुशी है, आनंद है। और आप म्यूज़िक के साथ में जब अपने आप को थिरकाने लगते हो, जैसा कि आपने कहा, मैं बिल्कुल आपके बात से सहमत हूँ कि जैसे ही म्यूज़िक चलता है आपको लगता है कि हम उठ करके हिलना डुलना शुरू कर दे और हम उसको एंजॉय करें, बीट को, म्यूज़िक को, धुन को। वो एक तरह का डांस ही है। लेकिन जब हम परफॉर्म करते हैं तो हम एक स्ट्रक्चर वे में परफॉर्म करते हैं। तो परफॉर्मेंस के लिए, और जब हम ग्रुप परफॉर्मेंस करें या हम सोलो परफॉर्मेंस करें, तो उसके लिए सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तभी आप उसको स्ट्रक्चर वे में गाने के ऊपर में कोरियोग्राफी को प्रेजेंट कर सकते हैं, वरना आप कभी भी डांस कर सकते हैं। अर्चना जी, एक चीज़ आप बताइए कि डांस सीखना और डांस करना
जैसे कोई अभी आपने बच्चे की बात की है, उसको ये भी नहीं पता कि वो डांस कर रहा है, लेकिन वो अपनी खुशी का इजहार है वो लगातार किए जा रहा है, हाथ पैर मारे जा रहा है, लेकिन एक समय आता है फिर उसको शर्म आने लगती है, उसको लगता है कि मुझे लोग देख रहे हैं, पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ। फिर एक स्टेज आती है, उसको ये लगता है या उसके पेरेंट्स को लगता है बच्चे को कि इसको डांस सिखाना चाहिए, इसके अंदर कुछ है, इसको और ज़्यादा बेहतर करना चाहिए, इसको और तराशने की ज़रूरत है। डांस सीखने की अगर बात है तो डांस क्यों सीखा जाए, सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए या कोई और भी वजह है? मैं आपको बताऊं, जैसे जो डांस है वो एक कला है, और कोई भी आर्ट फॉर्म होता है, जैसे गाना सीखते हैं हम या डांस सीखते हैं या हम एक स्पोर्ट्स करते हैं, तो ये एक डांस सिर्फ यही नहीं है कि आपको परफॉर्मेंस करना है और आपको एंजॉय करना है, पर जब हम इस कला को सीखते हैं तो वो आपको एक स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन में बांध देता है, जिससे कि आपका बॉडी का पूरा इंटरनल सिस्टम डेवलप होता है। जैसे कि हमें लगता है कि नहीं, हमें इस बच्चे को डांस सिखाना चाहिए क्योंकि इसके अंदर ये कला, हमने देखा ये म्यूजिक के साथ थिरकता है, ये इसको एंजॉय करता है, लेकिन आप अननोइंगली उसको जो आप दे रहे हो शिक्षा, वो ये होता है कि उसका माइंड डेवलप हो रहा है, उसकी ऑब्जर्वेशन पावर इंक्रीज हो रही है, उसके जो वो सीख रहा है उसको वो कॉन्फिडेंस से रिप्रोडक्शन जब दोबारा वो करता है वो उसका बढ़ रहा है, उसका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, वो अपने माइंड हार्ट को डिसिप्लिन कर रहा है और वो पूरा एकाग्र होके किसी चीज़ को सीख रहा है। तो आप अननोइंगली सिर्फ आप प्लेजर के लिए नहीं डांस उसको सिखा रहे हो, आप उसका पूरा स्पिरिट, उसको स्पिरिट, उसका हार्ट, उसका माइंड को भी साथ साथ में डेवलप कर रहे हो। और जब कोई भी बच्चा या कोई भी बड़ा इंसान डांस सीखता है तो वो अपने आप को उस समय बिल्कुल इनग्रॉस्ड कर लेता है, वो बिल्कुल, हम कहते हैं कि हम डिप्रेशन में है, पर आप एक बार डांस में आप आइए, देखिए, अगर आप डांस करने लगेंगे आपका डिप्रेशन भाग जाएगा, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है सोचने के लिए कि मेरा डिप्रेशन कहाँ है, क्योंकि आप तो पूरी तरह से इन्वॉल्व हो उस चीज के लिए। एक तरह से एक थेरेपी का भी काम बिल्कुल, इट इज अ थेरेपी ऑल्सो, जैसे कि योगा एक थेरेपी है या कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट आप जिसमें इंटरेस्ट ले सकते हो, अगर आप वो सीखते हो तो इट वर्क्स एज अ थेरेपी बिकॉज यू आर टोटली इन्वॉल्व्ड इन इट, एंड व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग यू आर आउट ऑफ द वर्ल्ड, you and your dance, your rhythm and your feet and your mind and your soul and your body all are in sync. So you are out of, so dance आप सिर्फ यही नहीं है कि आप परफॉर्मेंस कराना है या आपको इंजॉयमेंट करवाना है बच्चों और को, बेनिफिट्स है, और बहुत बेनिफिट्स है इसके। आपका फिजिकल एक्सरसाइज तो होता ही है, आपका मेंटल एक्सरसाइज होता है, आपका स्पिरिचुअल एक्सरसाइज होता है, क्योंकि आप एक कनेक्शन बिल्ड करते हो अपने बॉडी, अपने स्पिरिट, अपने माइंड, अपने हार्ट से। तो आप कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट आपके लिए सिवा एक इंजॉयमेंट से बहुत ज़्यादा कुछ देता है आपको लाइफ में। अर्चना जी, एक और चीज़ बताइए, ये किस तरह से चूज़ किया जाए कि हमने कौन सा डांस सीखना है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो बच्चे हैं उनके लिए उनके पेरेंट्स ही डिसाइड करते हैं कि इसको भंगड़े में डाल देते हैं, इसको कथक सिखाते हैं, इसको या कोई और डांस है वो सिखाते हैं। तो किस तरह से ये चीज़ डिसाइड की जाए, डिसीजन कैसे लें हम कि कौन सा डांस सीखना है? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। और देखिए, ऐसा होता है कि मैं बहुत बिलीव करती हूँ इस बात पे कि डांस हमेशा एक स्ट्रक्चर डांस बच्चे को सिखाना चाहिए। देखिए, भंगड़ा है या कोई भी तरह का फोक डांसेस है, गरबा है या राजस्थानी कालबेलिया है या कोई भी फोक डांस है, वो फोक डांस इज़ अ काइंड ऑफ अ एंजॉयमेंट, ठीक है। या आप बॉलीवुड डांस करते, क्योंकि बच्चे आजकल चूंकि देख नहीं पाते हैं वो कि क्लासिकल डांस होता क्या है, तो वो उनको इस्टेब्लिश ही नहीं कर पाते हैं अपने माइंड में कि वो है क्या चीज़। उनके लिए तो उन्होंने तो देखा ही नहीं है कि क्लासिकल डांस आजकल तो दिखाई नहीं देता है कहीं पे भी, तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो वो बॉलीवुड वो देखते हैं पिक्चर्स में, मूवी में, तो उनको लगता है कि हमें बॉलीवुड में इंटरेस्ट है, लेकिन एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि ये जो बॉलीवुड डांसर्स, जो हीरोइंस है, ये सारे क्लासिकली ट्रेंड है। क्योंकि आप क्लासिकल डांस जब सीखते हो, चाहे वो आप वेस्टर्न क्लासिकल करो या आप इंडियन क्लासिकल करो, दैट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स कि आप एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में डांस को सीखते हो,
और आप एक लेवल बाय लेवल डांस को सीखते हो। जब आप क्लासिकली ट्रेंड हो जाते हो किसी भी तरीके के डांस में, तो फिर आपके लिए कोई भी और डांस करना बहुत आसान हो जाता है, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो फोक हो, चाहे वो किसी भी तरह का डांस हो। तो ये तो मैं तो पेरेंट्स से मेरा यही सजेशन और एडवाइस रहेगा कि आप बच्चों को आप क्लासिकल डांस स्टाइल में डालिए, चाहे वो किसी भी तरीका का हो, इंडियन क्लासिकल हो, कथक हो, भरतनाट्यम हो, जो क्लासिकल कर लेगा वो सब डांसेस कर लेगा, वो सब डांस कर पाएगा, क्योंकि उसका बॉडी एक स्ट्रक्चर डांस में एस्टैब्लिश हो गया, उसको रिदम का पूरा नॉलेज है, उसके बॉडी को हैंड मूवमेंट्स का, बॉडी मूवमेंट्स का रिदम के साथ कैसे चलना है, फास्ट पेस में कैसे चलना है, स्लो पेस में कैसे चलना है, उसके पास एक वोकैबुलरी तैयार है। अब उस वोकैबुलरी से वो प्ले कर सकता है, वो एक कुछ भी कर सकता है अपने वोकैबुलरी से। पर आप सीधा बॉलीवुड करिए तो उसमें आपका वोकैबुलरी तो तैयार हुआ ही नहीं है। आपने एक स्ट्रक्चर, जब आप ABCD सीख जाओगे तो आप वर्ड बनाओगे, सेंटेंस बनाओगे और पैराग्राफ लिखोगे, आप खुद करोगे ये सब चीजें। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं आपको देख रही हूँ, आपका 30 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है, आपने इंडिया में डांस किया है, कराया है, और कुवैत, दुबई, कतर, USA, अब कनाडा। आपकी क्लासिकल डांस के साथ ये जो जर्नी है वो कैसी रही? ये तो बहुत अभूतपूर्व जर्नी मैं कह सकती हूँ रही है, क्योंकि बचपन से ही मैं क्लासिकल डांस सीखती थी और मेरा जन्म कलकत्ता में हुआ है, तो वेस्ट बंगाल वैसे भी कल्चरली काफ़ी रिच माना जाता है, और दूसरा साउथ इंडिया काफ़ी रिच कल्चरली माना जाता है। वहाँ तो घर घर में बच्चे डांस और गाना ये सब सीखते हैं, तो शायद ये कंट्रीब्यूशन रहा। और मेरा खुद का भी शौक था कि मैंने सीखना शुरू किया क्लासिकल डांस, तो कथक में मैंने ट्रेनिंग ली पूरी। उसके बाद जब मैंने DPS ज्वाइन किया एज अ डांस टीचर दिल्ली पब्लिक स्कूल ग्रेटर नोएडा, तो मुझे लगा कि मैं एक डांस में इक्विप हूँ, और लेकिन मेरे को स्कूल में कई वैरायटी ऑफ डांस की ज़रूरत होती है, तो मुझे साउथ इंडियन क्लासिकल भी सीखना चाहिए। तो मैंने तब छोटे छोटे बच्चों के साथ खड़े होकर के कुचिपुड़ी में पूरी अपनी डिप्लोमा हासिल की 6 ईयर की, और तो फिर मेरे पास साउथ और नॉर्थ दोनों का इक्विपमेंट, मतलब आई वॉज इक्विप्ड विद द स्किल ऑफ साउथ एंड नॉर्थ क्लासिकल डांस। तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जब मैं कोरियोग्राफी करती थी तो आई यूज टू प्ले विद द स्टेप्स ऑफ द साउथ एंड नॉर्थ, दोनों को मिला के करती थी। और बॉलीवुड करना तो बहुत आसान है, जब आप नॉर्थ और साउथ के डांस में अगर आप इक्विप हो अपने आप को, तो बॉलीवुड करना तो बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाता है। और फिर थीमेटिक कोरियोग्राफी करने लग गई धीरे धीरे, और स्किल शार्पन होता गया। फिर जब मैं दुबई गई तो मुझे वहाँ पे लगा, मुझे ये एहसास हुआ कि दुबई में साउथ इंडियन लोगों की बहुत मेजॉरिटी है। अच्छा। एंड वहाँ पे साउथ इंडियन सिखाने वाले जो डांस टीचर्स है वो काफ़ी थे, जो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी वगैरह को सिखाते थे। और नॉर्थ इंडिया कथक को सिखाने वाला वहाँ पे बहुत हार्डली फ्यू थे। तो मैंने अपने आप को बिल्कुल कथक में डिवोट कर दिया। अच्छा। कि मुझे कथक को यहाँ स्प्रेड करना है, और बाकी तो साउथ इंडियन वाले है ही क्लासिकल डांस। कितने लोगों को आप अपने साथ जोड़ सकी वहाँ दुबई में? दुबई में मेरे पास कम से कम नहीं तो 100 बच्चे के करीब डांस सीखते थे। बच्चों के अलावा क्या बड़े लोग भी? बड़े लोग भी, बच्चे मतलब स्टूडेंट्स, यू कैन काउंट इट एज अ स्टूडेंट्स। हाँ। और इसके अलावा भी जब हम स्कूल में मैं सिखाती थी तो वहाँ तो हज़ारों की संख्या में बच्चे होते हैं, और वहाँ तो हर वक्त कभी स्कॉलर बैच है, तो कभी एनुअल डे है, और 100% पार्टिसिपेशन होता था, तो हर वक्त कोरियोग्राफी चलती रहती थी। और वहाँ कंपल्सरी डांस होता था, तो हर एक स्टूडेंट्स डांस सीखता था, तो वो तो अनगिनत है। और फिर मैं अपनी एकेडमी की बात कर रही हूँ, जहाँ मैं पर्टिकुलरली कथक को सिखाती थी, तो वो तो लिमिटेड होते थे, क्योंकि जिनको कथक सीखना होता था वो अलग से आते थे मेरे पास। वैसे ही दुबई के बाद जब मैं कतर गई तो वहाँ पे भी अगेन फिर मैं फॉर्चुनेटली कतर में भी DPS था, तो वहाँ पे भी मैंने ज्वाइन किया DPS, और स्कूल में सिखाती थी, साथ में मेरी एकेडमी चलती थी। वहाँ पे मैं 3 साल रही, वहाँ पे भी ऐसे ही करीब 50-60 बच्चों को मैंने ट्रेन किया होगा। अच्छा, उन दिनों जूम नहीं था, उन दिनों ऑनलाइन क्लासेस नहीं होता था, तो जब मैं कंट्री मूव करती थी तो सारे बच्चे पीछे से छूट जाते थे, स्टूडेंट मेरे। अच्छा। क्योंकि उस समय तो मुझे, हमारे दिमाग में ही नहीं था कि हम ऑनलाइन उनको रिटेन कर सकते हैं। फिर हम कुवैत गए, तो कुवैत में भी चूंकि मेरे हस्बैंड का जॉब ट्रांसफरेबल था, तो मैं इस तरह से कंट्री शिफ्ट करती रही। कुवैत में भी हर बार एक नए कंट्री में जाना और अपने साथ लोगों को जोड़ना, और वो भी एक चैलेंज कथक डांस के साथ,
तो हाउ वाज इट? बिल्कुल, ये एक चैलेंज होता था और आप यकीन नहीं करेंगी कि हर कंट्री में मैंने अपने एकेडमी को एक बच्चे से शुरू करती थी और मुझे कभी नहीं लगा कि मैं एक बच्चे को 1 घंटा दूं, ऐसा मुझे फील नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि वो एक बच्चे से मेरी एकेडमी में मैं 50-100 बच्चे कर सकती हूँ। तो क्योंकि अगर आप एक स्किल्ड टीचर हो और आप डेडिकेटेड हो, फोकस हो और आप जानते हो टेक्निक की कैसे आपको बच्चों को ट्रेन करना है, कैसे कोरियोग्राफी करनी है, कैसे उनके टैलेंट को एक्सपोज्ड करना है, उनके टैलेंट को शोकेस करना है, तो वो सब कला भगवान की दया से मेरे पास था। तो शायद एक एक बच्चे से शुरू करके भी हर एक कंट्री में मैंने अपने आप को बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश किया। कुवैत में भी किया और आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ अभी मुझे 1 ही साल हुआ है। अच्छा। पर मेरे पास इतने इंक्वायरीज आते हैं परफॉर्मेंस कराने के लिए कि करवा दीजिए परफॉर्मेंस, कथक का परफॉर्मेंस करवाइए, और मैं अभी सिखा रही हूँ और मेरे पास अभी 15 बच्चे करीब सीख रहे हैं, और बच्चे मतलब एडल्ट सीख रहे हैं। एंड टू माई सरप्राइज यहाँ पे कनाडा में मुझे बच्चे नहीं मिल रहे हैं, सारे एडल्ट्स मिल रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट अंडरस्टैंड, एक्सेप्ट 1 चाइल्ड। मेरे पास सारे वर्किंग लेडीज है, वर्किंग एडल्ट्स है। प्रोबेबली मुझे लगता है कि कनाडा में बच्चों को एक्सपोजर कथक का कभी मिलता ही नहीं है। तो जो वर्किंग लेडीज है या जो इंडिया से आके यहाँ पे काम कर रही है और जिनको मालूम है, वो सब मुझे कांटेक्ट करती हैं, और सब वैंकूवर से कोई मेरे से सीखने आता है, तो कोई लैंगले से सीखने आता है। तो आई फील वेरी ऑनर्ड कि इतने तो यहाँ कहाँ पे हैं आप? मैं यहाँ पे सरी में मेरा एकेडमी है और साथ ही में मैं डेल्टा में भी क्लास लेती हूँ, नॉर्थ डेल्टा में। तो ये दोनों जगह मैं सिखाती हूँ। ਸੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਚਨਾ ਸਿਨਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਆ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੈਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਸ਼ੇਰੀ ਪੰਜਾਬ AM 600। AM 600 ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਦਾ ਨਵਜੋਤ ਢਿੱਲੋਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਥਕ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਂਸਰ ਨੇ ਅਰਚਨਾ ਸਿਨਹਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਗਏ, ਸ਼ਾਰਜਾ ਗਏ, ਤੇ ਕਥਕ ਡਾਂਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੁੰਮਦੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਘੁੰਗਰੂ ਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਕੈਡਮੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਅਰਚਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਡਾਂਸ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। मैं कुछ गल्ला इन्हों नाल होर करना चाहनी हाँ। अर्चना जी, अभी मैंने थोड़ा सा आपसे पहले भी पूछा था कि जब कोई व्यक्ति डांस करता है, जैसे खुद कर रहा है, चाहे वो बच्चा है या बड़े हैं, डांस का शर्म के साथ कैसा संबंध है? बहुत बारी हम शर्मा जाते हैं, हम शादी वगैरह में डांस करते हैं, एक दूसरे को खींच कर लाते हैं, आओ नहीं मुझे करना नहीं आता। उसके बाद हम थोड़ी देर बाद थोड़ा सा करने लगेंगे, फिर भूल जाएंगे कि हाँ हम डांस कर रहे हैं। तो देखिए, ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ से शर्म तभी करते हैं जब हम उस चीज़ पे कॉन्फिडेंस नहीं फील करते हैं। क्योंकि अगर आप किसी टॉपिक पे भी बोल रहे हैं और अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप हेजिटेट करते हैं। वही उसी तरह से हर एक चीज़ में होता है, जहाँ आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है वहाँ आप शर्म करते हैं कि नहीं, आप आगे नहीं आना चाहते हैं। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस तो रहेगा क्योंकि डांस हमें करना नहीं आता। तो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि इसमें जब आप डांस कर रहे हैं, आपको करना आता है या नहीं आता है वो मैटर नहीं करता है, आप कितना इंजॉय कर रहे हैं उसको वो मैटर करता है आपके लिए। तो आपको वहाँ पे शर्म आने की जरूरत नहीं। आप जब हम डिस्क में जाते हैं और हम डांस करते हैं तो किसको क्या पता कि कौन क्या डांस कर रहा है। एवरीबडी एंजॉयिंग द म्यूजिक, दैट लाइटिंग, वो सब नशे में डांस ही कर रहे हैं। उस समय वो कोई नहीं इतना कॉन्शियस होता है कि क्या करे। आप कोई परफॉर्मेंस थोड़ी कर रहे हो। यस, अगर आप परफॉर्मेंस कर रहे हो तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बिल्कुल तैयार होकर के जाइए, क्योंकि सारी दुनिया सिर्फ आपको ही देख रही होती है। लेकिन होता क्या है कि जब हम किसी शादी में भी जाते हैं तो हमें लगता है सब हमें देख रहा है, जबकि आपको कोई नहीं देखता होता है। सब अपने में मस्त होकर डांस करता है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे देख रहा है, आपको कोई नहीं देख रहा है, आप अपने आप को इंजॉय कर रहे हो। अगर आप थोड़ा हिल के भी इंजॉय करते हो
दैट्स मोर देन एनफ। उसके लिए आपको शर्माने की जरूरत नहीं है। डांस करने के लिए आपको पार्टीज में तो स्पेशली डांस करने के लिए आपको स्टेप्स जानने की कोई ज्यादा जरूरत होती नहीं है। आपको इंजॉयमेंट करने की जरूरत है। आपको इंजॉय करना है, आपको म्यूजिक इंजॉय करना है, रिदम इंजॉय करना है। आपको स्टेज पे जब परफॉर्मेंस करते हो तब आपको स्टेप्स की जरूरत होती है कि आप बिल्कुल कोरियोग्राफी पे परफेक्ट होकर के आप स्टेज पे करिए, क्योंकि जितनी भी जनता बैठी है वो सब आपको ही देख रही है। वहां पे अगर आप नहीं कॉन्फिडेंस फील करोगे तो वो वहां पे, लेकिन जब आप स्टेज पे जाते हो तो ऑब्वियसली आप तैयारियों के साथ जाते हो, क्योंकि आपको पता है कि सारी जनता आपको देख रही है, तो आप बिल्कुल तैयार हो। लेकिन किसी भी पार्टीज वगैरह में शर्माने की तो बिल्कुल जरूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अपने लिए डांस कर रहे हो, आप लोगों के लिए नहीं कर रहे हो। परफॉर्मेंस आप लोगों के लिए लोगों के लिए भी करते हो अपने साथ साथ, क्योंकि आप अपनी कला को दिखाना चाह रहे हो लोगों को। लेकिन यहाँ पे तो आप अपने लिए एंजॉय कर रहे हो, तो बिल्कुल बिंदास आप डांस करिए पार्टीज में, बिल्कुल शर्म मत करिए। शर्म होनी ही नहीं चाहिए बिल्कुल। मुझे तो लगता नहीं है कि किसी को भी शर्माना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़, आजकल कंपटीशंस बहुत बढ़ गए हैं, डांस के बहुत कंपटीशंस हो रहे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोग जो कंपटीशंस में जा रहे हैं। ये जो डांस कंपटीशंस का ट्रेंड है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, आप इसको कैसे देखती हैं? क्योंकि कई बार बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं और जीतेगा तो कोई एक या दो ही जीतेंगे, बाकी जो है वो पीछे रह जाएंगे। एक छोटे बच्चे के मन के ऊपर इस चीज़ का असर हो रहा है कि वो जीत नहीं सका। कई लोग ऐसे डांस कंपटीशंस हैं जिनमें बच्चे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उनको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। आप एज अ डांस टीचर इसको कैसे देखती हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत हम बच्चों के ऊपर बहुत ओवर प्रेशर दे रहे हैं, क्योंकि एक तो बच्चा चाहता है कि हर एक बच्चा चाहता है कि मैं जीतूं, मैं विनर हूँ। लेकिन जब वो कंपटीशन में जाता है तो विनर तो हो नहीं पाता है, विनर तो सिर्फ 1 2 3 ही हो पाएगा। तो उस समय वो जो बच्चा बहुत डिसहार्टन हो जाता है। तो लेकिन कंपटीशन तो बहरहाल कंपटीशन ही होता है, चाहे वो लाइफ की कंपटीशन हो, चाहे वो डांस की हो, चाहे वो एजुकेशन में हो। किसी में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड तो 3 ही लोग आते हैं 40 के बच्चों के क्लास में, बाकी तो फिर नीचे ही आता है। लेकिन हमको बहुत ओवर और इतना ज़्यादा ये कंपटीशन में कॉम्प्लिकेशंस होने लग गए हैं। कौन कितना कॉम्प्लिकेटेड डांस करेगा वो विनर होगा। तो डांस की जो अपनी ग्रेस है वो लूज कर जाती है कई बार यहाँ पे, क्योंकि ग्रेसफुल होने की बजाय वो एक्रोबैटिक, एरोबिक और जिम्नास्टिक ज़्यादा होने लग गया है। और वो ग्रेस जो इफ आई टॉक अबाउट इंडियन डांस, वेस्टर्न डांस, तो ऑब्वियसली वेस्टर्न डांस में थोड़ा सा मैकेनिकल पोर्शन भी हिप हॉप वगैरह में होता है, और लेकिन जो इंडियन डांस है वो तो ग्रेसफुल डांस होता है। वी कंसीडर एज अ ग्रेसफुल डांस, क्योंकि उसके अंदर एक शर्म, हया, एक आईज मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट, ये सब बहुत कुछ होता है। लेकिन आप आजकल के कंपटीशन में देखिए तो बिल्कुल वो ये सब चीज़ धीरे धीरे कहीं कहीं पे लूज होती जा रही है, क्योंकि लोग उसको बहुत ही जिम्नास्टिक वे से करने लगे, और जो जितना कॉम्प्लिकेटेड मूवमेंट्स करेगा उसकी वाहवाही उतनी ज़्यादा होती है। एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल मैंने पूछना है, ये कंट्रोवर्सी भी बना रहा है पिछले समय के दौरान, कि क्या किसी तरह के डांस का कोई डांस किसी जेंडर स्पेसिफिक तक लिमिटेड है, सीमित है, कि ये डांसेस सिर्फ लड़कियां ही कर सकती हैं या ये डांसेस सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता है ऐसा जेंडर स्पेसिफिक कोई भी डांस होता है, क्योंकि कोई भी डांस लड़की भी कर सकता है, लड़का भी कर सकता है। तो ये जेंडर स्पेसिफिक किसी भी डांस को बनाना ये मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। क्योंकि अगर आप कथक को ही ले लीजिए तो कथक शुरू में जब एंशिएंट टाइम से कथाकारों ने शुरू किया था, और लड़के ही है वो इसको डांस करते थे, लड़कियों का ड्रेस वेशभूषा पहन करके जगह जगह जाके वो कहानियां सुनाते थे और डांस कर करके उसको कथाकार कहते थे। तो इस तरह से डेवलप हुआ। तो ऐसा नहीं है कि हमको जेंडर बायस्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी आर्ट फॉर्म जो होता है वो फ्री ऑफ जेंडर होता है। कोई भी जेंडर किसी भी आर्ट को कर सकता है अगर आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज है तो। ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड, बहुत अच्छा आपने ये जो जिक्र किया है। अपने पास समय कम है और घुंघरू एकेडमी आप चला रही हैं। आपने एक चीज़ अभी थोड़ी देर पहले बताई कि ज़्यादातर एडल्ट आपके पास डांस सीखने आ रहे हैं, बच्चे कम हैं। जो औरतें आपके पास डांस सीखने आ रही हैं, क्या वो
कोई पर्पस लेकर आ रही हैं या वैसे ही आ रही हैं? नहीं, बहुत सी तो कथक के प्रति बहुत उनका रुझान रहा है, और जब उनको पता चला, वो गूगल करती हैं और उनको पता चला कि यहाँ पे एक कथक की टीचर है, तो बड़ी खुश हो जाती है कि चलो वैंकूवर में कोई तो कथक का आया है जो हमको सिखाएगा। तो वो आती हैं, और वो लोग जो है वो ज़्यादातर कथक जानती हैं कि कथक होता क्या है और वो दिखता कैसे है और उसके अंदर कितनी आर्टिस्टिक वैल्यू है। लेकिन उनको पता था, उनके पास कोई यहाँ कुछ ऐसा था नहीं जहाँ वो जाके सीख सकती? नहीं, उनके पास ऐसा कोई यहाँ पे उनको प्लेटफॉर्म शायद नहीं मिला होगा, और मिला भी है तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे पास जितने भी अभी तक स्टूडेंट्स आए हैं वो बहुत इंटरेस्टेड है, तभी वो इतने दूर दूर से ड्राइव करके मेरे पास सीखने के लिए आते हैं। और उनको रुझान है कथक पे, वो जानते हैं कथक क्या है, क्योंकि वो सारे एडल्ट्स हैं और बड़े हैं, तो वो देखते हैं, भले वो बॉलीवुड कथक ही देखे तो वो, लेकिन जब तक आप फंडामेंटल्स नहीं सीखोगे आप बॉलीवुड कथक भी नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए मैं कथक में पहले बच्चों को फंडामेंटल्स सिखाती हूँ, कथक का पैर मूवमेंट, हैंड मूवमेंट्स, बॉडी मूवमेंट, बॉडी पॉस्चर, डिफरेंट स्पिनिंग मूवमेंट्स। उसके बाद मैं कहती हूँ आपकी वोकैबुलरी अब तैयार हो गई है, अब मैं कोरियोग्राफी करूंगी तो उसमें ग्रेस आएगा। अभी आपके जो अल्फाबेट्स हैं वो सीख लिए हैं, अब ग्रामर शुरू हो रहा है। तो इसीलिए मेरे पास अभी इसी साल अब मेरे पास 15 बच्चे हो गए, नहीं तो पहले मेरे पास 2-4 बच्चे ही थे जब मैं आई थी, तो और वो भी ट्रेंड नहीं थे, सारे अनट्रेंड बच्चे थे। जी अर्चना जी, हमारे पास समय कम है, और अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहे तो कहाँ किया जा सकता है? मेरा फ़ोन नंबर है 604-616-8729, दैट्स माई कॉन्टैक्ट नंबर। और मेरा वेबसाइट है, दैट वेबसाइट इज़ www.ghungrukathakalacademy.com, एंड आई हैव अ फेसबुक पेज ऑल्सो, घुंगरू कथक एकेडमी। तो आप लोग उसमें वेबसाइट में जाके रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, वहाँ वीडियोस भी देख सकते हैं मेरी कोरियोग्राफी की, और मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी नवजोत, इट वाज माय प्लेजर टू बी विथ यू ऑल, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ਅੱਜ अर्चना सिन्हा जी ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।